मैं जोगेश्वर एस पुरोहित हूँ। सो आई एम एन एसोसिएट प्रोफेसर इन क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। आज सर हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि जो बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाए कि अगर वो बीटेक इन मैथमेटिकल इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेता है जी। तो उसकी लाइफ की जर्नी कैसे रहेगी, मेन पॉइंट्स क्या आएंगे इस जर्नी में। ठीक है। कॉलेज के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गलत कोर्सेज चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि मेरे 3 साल बर्बाद हो गए, अब जॉब्स नहीं मिल रही, मैं इंटरेस्टेड नहीं था इसलिए मैं पढ़ा नहीं। मैथमेटिकल इनोवेशन को अगर सिंपल भाषा में समझना हो उसे कैसे समझे? सी अगर आप नेम की बात करेंगे तो नेम ऐसा है कि सो द करिकुलम इज डिजाइन्ड टू केटर टू इनोवेशन। सो व्हेन वी से इनोवेशन, सो वी टीच देम इनोवेशन फर्स्ट। बट इनोवेशन के साथ हमारा जो इनोवेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। सो इन द इनोवेशन वी डील विद बेसिकली आईटी इनोवेशन। लेकिन दिक्कत ये है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। वो ये है कि क्योंकि वी आर ए recognized university का center, so we have to only look for courses which are already approved by UGC. So that's why the name was already there, that's why we have opted this name. But nevertheless, it is not only a gimmick of the names, but actually students are studying mathematics also in equal weightage to information technology. This is already integrated in the course curriculum. This is not only a name. हाँ, ओके। तो फिर बच्चे को ये कोर्स चूज़ क्यों करना चाहिए? हाउ डज दिस कोर्स हेल्प हिम आउट एंड हाउ डज दिस कोर्स इन फर्दर हेल्प सोसाइटी आउट? Wonderful question. Actually, so I will start this question to answer in a way like this, that what makes our course stand out from any other course related to an IT or a computer science. Yes, so I will answer it in that way. So now to start with, I will say that we do not have a placement cell formal, but the way our curriculum is designed, at least more than 50% of the weightage is given to hands-on training. And this hands-on training not only happens in terms of practicals, but it also happens in terms of lot of industrial and academic projects. So the projects are integral component of the course, and they start right at the first semester itself. That's it. So and from first to 7th semesters, in each semester they are exposed to projects which are part of the every paper. And during summers, they are also exposed to industrial internship. So when I say industrial internship, the internship has to happen in an industry. This is compulsory. That's nice. So during the summer break of 2 months and 3 months, example आपको याद है any student working in not only any student, it is compulsory for each and every student of CIC to take up an internship in an industry. So 95 to 98% of our students, they undertake an industrial internship right from the first year itself. And which industries do these? So we have tie-ups with many of them, like PhD chamber, like DRDO. So we have tie-ups with them, and there are other private organizations also. The student, and because since 2012 we are catering to them, so there are a lot of alumni who are already there in the industry. So and we have a very good strong alumni association. The students, they get the internship through the alumni itself. Oh, that's so wonderful. That's why I told that we do not have a formal placement cell, but we also do not find any problem in placing our students because they get it by their own. What is the worst case scenario अगर कोई बच्चा आता है? Worst case scenario in a sense? मतलब maybe he doesn't score that well in his exams, उतना अच्छा CGPA नहीं आया, SGPA नहीं आया. Still, I think ऐसा आपका skill based course है जी. तो will he still be able to find jobs? See, 95 to 98% of our students are placed, and I would say that good students, they always prefer for higher education. Some of them, they go abroad. Some of them, they also continue making. There are students who have their own startups. अच्छा, wow. Like you are coming up from a startups, and there are at least 5 or 6 startups which are already successfully running by our students. Oh, wow, wonderful. And as you know that CIC also has a sister department, I will say, known as Design Innovation Center, wherein we have started now funding the students also for taking off, starting pre-incubating them, and we are also giving them financial assistance in 2 ways. First of all, for pre-incubation, and the tune is close to 50,000, I think. And also there is another way. We have also, from last year we have started with students internship scheme, in which we are providing them 10,000 of financial support every month for 6 months for doing academic projects. So this is how they are actually groomed based on their So I would say that students who are not getting anywhere, they actually end up remaining in CIC though, but they are also incubated by our teachers. So now tell me, course skills कौन सी develop होती है if a person takes the information technology and innovation course? Yeah.
So the core lies, as I said earlier, the core lies in mathematics and computer science. So IT बोलूँगा मैं. So students are well equipped in handling data and in terms of big data, visualization, analysis, etc. And starting from all related to the computer sciences, mostly to the soft skills related to preparation, making an app, so our students are very well versed. Starting at the first year, making an app and making an website, etc. So हमने ये इवन रूल बना रखा है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हम कोई भी स्टूडेंट अगर प्रोजेक्ट में ऐप बना के लाता है या वेबसाइट बना के लाता है, देन ही गेट्स ए डिसएडवांटेज, क्योंकि हम उसका नंबर कम कर देते हैं. बिकॉज वी वांट आवर स्टूडेंट्स थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स they look at complex problems related to visualization and analysis of data, complex data, mostly biological data, health data और social data. में 3-4 कौन से जॉब्स को ट्रांसलेट करती हैं ये स्किल्स, व्हिच यू हैव सीन आपके स्टूडेंट्स मोस्टली? हमारे स्टूडेंट्स तो हर फील्ड में गए हैं. इवन मैं ये बोलूँगा कि दे हैव बिकम डेटा साइंटिस्ट. अच्छा. They have also some of them are doing PhDs also in health sector, biological sciences they have gone to. आजकल एक नया सेक्टर है, आप जानते होंगे शायद, मेडिकल इमेजिंग बोलते हैं. हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं मेडिकल इमेजिंग में. सम ऑफ देम आर डूइंग PhD और सम ऑफ देम हैव टेकन अप जॉब्स आल्सो इन मेडिकल इमेजिंग. और कंप्यूटर साइंस में तो n नंबर ऑफ थिंग्स दे कैन डू. कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जितने भी प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ये सारे तो रेगुलर हैं. नाउ सर, स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि बीटेक तो IITs वगैरह में भी ऑफर होता है. करेक्ट. एंड मेनी देयर आर सो मेनी बिग नेम्स इन बीटेक के लिए. तो फिर व्हाई शुड अ स्टूडेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड इंट्रिंसिक क्या है? वंडरफुल क्वेश्चन. नाउ मैं एक वन बाय वन बात करूँगा. देखिए, अब आपने IITs की बात किया. इफ़ यू लुक एट द फैकल्टी कंपोजिशन ऑफ CIC, हमारे 80 to 90% ऑफ द फैकल्टीज हैव सम क्वालिफिकेशन फ्रॉम IIT. जैसे मैं खुद IIT खड़गपुर से MTech हूँ. सम ऑफ आवर कुछ लोग IIT रुड़की से PhD हैं. देयर आर 3 फैकल्टीज हु आर PhD फ्रॉम IIT रुड़की, 1 फैकल्टीज फ्रॉम IIT दिल्ली जो कि PhD हैं. तो इस तरीके से हमारा फैकल्टी का कंपोजिशन है. नाउ लुकिंग एट, अगर आप बात करेंगे कि हमारा जो बीटेक ऑफर होता है वो IIT या दूसरे किसी इंजीनियरिंग डिग्री से कैसे स्टेज्ड है, ना आई विल से पहला तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स कैपेसिटी में बात करूँगा, जिनको कि IIT में कोई दूसरा स्ट्रीम मिल रहा होता है, लेकिन बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग कंप्यूटर साइंस देयर, सो दे चूज बीटेक प्रोग्राम ऑफ CIC बिकॉज वी ऑफर ए प्रोग्राम इन IT एंड मैथमेटिकल इनोवेशन. ऐसे बहुत सारे, हर बैच में कम से कम 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि IIT छोड़ के हमारे पास आते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रेफरेंस. बिकॉज इफ समवन इज वेरी वेरी मोटिवेटेड टू टेक एन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, सो ही कम्स हियर. पहला. दूसरा एक एडवांटेज है CIC का कि इफ़ यू लुक एट द फी स्ट्रक्चर, सो इससे पहले हमारा पर ईयर का फ़ी जो है वो 6,000 था. लास्ट ईयर से हमने उसको यूनिवर्सिटी ने बढ़ाया है, 40,000 किया है. बट इफ़ यू लुक एट ऑल्सो इट इज़ एन ईयरली फ़ी. तो 4 साल में 1,60,000 में आपको एक डिग्री मिल रहा है, विच इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द चीपेस्ट कोर्स विच पैन इंडिया बीटेक के लिए जो ऑफर हो रहा है. दैट्स एक्चुअली राइट. एंड नॉट, बट इफ़ यू लुक एट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ CIC, आप थोड़ा कैंपस भी दिखा सकते हैं. ये हमारा बिल्डिंग है. वी हैव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन फैक्ट, एंड द एम्बियंस एंड द इकोसिस्टम इज रियली गुड कंपेयर टू एनी अदर कॉलेज और समथिंग. और मैं ये बात करूँगा कि अगर हम बहुत सारे प्राइवेट रिनाउंड कॉलेजेस या डिग्री जो देते हैं उनके कंपैरिजन में देखेंगे, we are placed far better in a place in terms of the faculty composition, in terms of infrastructure, in terms of the students composition, as well as the exposure of students, because the course curriculum जिस तरीके से staged है कि industry exposure and other things, we are far better than any other program, I will say. Now a little bit inside the course question, आप ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट्स बता सकते हो जो बच्चा 12th के आने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस जिसमें मैं पढ़ता हूँ, BCom में भी मैंने सुना है 12th के कॉन्सेप्ट कोई और इलेबोरेट करते हैं, लेकिन आपका तो मतलब इतना अलग है 12th के सब्जेक्ट से. सो व्हाट आर सम 2-3 लाइक पेपर्स में आपके टॉपिक्स रहेंगे ना DSCs में, वो कैसे टॉपिक्स हैं, उनके नाम बताएं. जैसे कि कोई मैथमेटिक्स में मैं एक बात बताऊंगा, जैसे लीनियर अलजेब्रा, अच्छा, है ना, या एंड बेसिक प्रोग्रामिंग है, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में बेस बनाते हैं. हाउएवर हमारे फैकल्टी ऐसे स्टेज्ड हैं कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज भी होगा और बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज अगर होगा, सो यू विल सेल थ्रू CIC, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. कुछ चीज़ें जो हमारे बच्चे, और ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कि बच्चे पीयर लर्निंग बहुत ज़्यादा करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पाइथन हमारे पेपर में कहीं इंटीग्रेटेड नहीं है, लेकिन हमारे हर बच्चे को अगर आप पूछेंगे तो पाइथन आता है, बिकॉज दे कम when they or they learn it through their peer learning processes. तो उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है. हमारे बच्चे, बड़ा फ्री सा सिस्टम है यहाँ पे
एंड एज आई सेड कि, और मैं खाली ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि अराउंड 50% वेटेज इज ओनली गिवन टू द थ्योरी पेपर्स, रेस्ट ऑफ द 50% आर ऑन हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकल्स। तो आप कितना स्किल सेट डेवलप करते हैं उस पर ज़्यादा फोकस है रेदर देन आप थ्योरी कितना पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इतना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज रियली वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बी इंडस्ट्री रेडी। तो उसके लिए हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरी पे हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। सो परफेक्ट। सो आई रिकैप हमारा रोड मैप जो मैं अभी तक के समझा हूँ और आपका क्या रहेगा, इफ आई एम रॉन्ग एनीवे यू कैन करेक्ट मी। जी। तो आफ्टर 12th मैथमेटिक्स आपको CUET में देना है, क्योंकि आई जस्ट हर्ड कि मैथमेटिक्स बहुत यूजफुल रहता है इफ यू स्टडी इट इन 12th Right. CIC के लिए। उसके बाद आप जब आओगे यहाँ पे यू स्टडी स्टफ एंड मैथ, इनोवेशन आप सीखोगे, हैंड्स ऑन लर्निंग सीखोगे, स्किल सीखोगे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कॉमन रहती है, कंप्यूटर बेस्ड मेनली रहती है ये सारी, हार्ड स्किल्स उतनी नहीं है आई थिंक सो, बट देन हाँ, बट दीज बिल्ड यू फॉर वेरी गुड प्लेसमेंट्स भी, कि एल्यूमिनाई नेटवर्क भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड फ्रॉम देयर यू गेट इंटर्नशिप्स एज वेल, एंड जॉब्स इसमें जैसे आप देखोगे तो डेटा इंटरप्रेटर्स, बिजनेस एनालिस्ट, मे बी समथिंग लाइक दैट, बिल्डिंग एप्स, डेवलपिंग वेबसाइट, समथिंग लाइक दैट यू कुड गो। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, और प्लेसमेंट्स भी आई थिंक बहुत अच्छी है, 95 से 98% रहती है जी। सो दिस वाज इट फॉर BTech इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। लास्ट में सर की तरफ से एंड करना चाहूँगा कि कुछ भी एडवाइस आप देना चाहते हो 12th क्लास के बच्चे को जो भी बोर्ड दे रहा है और CUET देने वाला है इधर आने के लिए। Nothing much, but as you know that majority of the BTech programs are linked through JEE, but this is one of the program which is linked through CUET। और हमारी जो eligibility criteria है उसमें मेन है कि आप GK मतलब जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, दीज आर द 3 थिंग्स वी रिक्वायर, वी डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर थिंग्स। सो ये करके आप अगर CUET के थ्रू, एंड दिस इज वन ऑफ द कोर्स विच हैज एज आई सेड मिनिमम अमाउंट ऑफ फी, तो आप इसको थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे तो इट इज़ ईजी टू क्रैक CIC। हाउएवर आई मस्ट से द नंबर ऑफ सीट्स आर क्वाइट लो, क्योंकि हमारा या 80 है, लेकिन जनरल सीट्स के लिए अराउंड 50 है, सो द कंपटीशन इज हाई। लेकिन अगर आप क्रैक करते हैं तो दिस इज अ वंडरफुल प्लेस टू स्टडी एक्चुअली BTech। You can see it right behind us. Beautiful. The weather is also very great. Yes, today. yes. So thank you so much, sir. Thank you. It was Nice meeting so you. nice Thank you. helping out. And 12th क्लास के बच्चों हेल्प हुई है तो यार कमेंट्स में फाड़ दो पूरा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।